Most common refractive error of human eye at birth is hyperopia. Among top 5 causes of worldwide blindness, the topmost is refractive error, followed by cataract, glaucoma, diabetic retinopathy, and ARMD. What complications can occur if refractive errors is not corrected in time, especially in children below 8? This will be explained in my video and why this happens. I am Professor Lukman. My subspecialty is corneal transplant surgery. I am a refractive surgeon. In this video, I have tried to explain basic concept of refraction, and to keep things memorized, I have designed a rule 3+1 for causes, classification and treatment options. आपको समझाने के लिए सैम्पल डिज़ाइन किया है. This is eyeball, this is cornea, this is lens, vitreous, retina and optic nerve. So rays parallel होती हैं. These are the parallel rays of light. कहाँ से आती हैं? Infinity से आती हैं. कहाँ focus होती हैं? In front of retina, on the retina or behind the retina. So this is on the retina, this is in front of retina, this is behind the retina. So it can be hypermetropia, it can be emetropia or it can be myopia. और अगर एक से ज़्यादा जगह पे फोकस हो तो दैट इज़ कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ साथ इसमें ऐड इन 3 बातों में करना ज़रूरी है. व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट, व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट. रिफ्रैक्टिव एरर को अगर आप डिफाइन करें तो दैट इज़ द फेलियर ऑफ आई, दैट इज़ failure of eye to focus light from an object onto the retina to form a clear image. This is the retina. So अगर यहाँ पे नहीं बन रहा image तो that is refractive error. Complications that can occur if refractive error is not corrected in time, especially in children below 8, number 1 is amblyopia and number 2 is strabismus or squint. Why this happens? Because eyes are aligned because of vision. ये एक आई बॉल है और इसको अगर देखें, दिस इज कॉर्निया, दिस इज लेंस, दिस इज रेटिना, दिस इज ऑप्टिक नर्व. अगर इसी को डिटेल में देखें, इफ दिस इज द नॉर्मल आई, दिस इज द साइज ऑफ द नॉर्मल आई, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं. पैरेलल रेज ऑफ लाइट coming from infinity are focused on the retina, on the retina. जब रेटिना पे फोकस होती हैं तो that eye is called emetropic eye. तो आई दो ही किस्म की हो सकती है. That can be either emetropic eye or that can be ametropic eye. So the normal eye is emetropia. Emetropic eye is not having any refractive error. So 4 बातें आपने जहन में रखनी हैं. 4 things you need to remember are, number 1, पैरेलल रेज हैं. कहाँ से आ रही हैं? पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं. कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं. कहाँ फोकस हो रही हैं? रेटिना पे फोकस हो रही हैं. कब? जब अकोमोडेशन इज एट रेस्ट. तो ईमेट्रोपिक आई इज द नॉर्मल आई. ईमेट्रोपिक आई इज योर नॉर्मल आई इज ईमेट्रोपिया. रेज यहाँ फोकस नहीं हो रही तो इसका मतलब दैट इज एमेट्रोपिक. एमेट्रोपिया, दैट इज अगर लाइट रेज यहाँ पे फोकस नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एमेट्रोपिया. तो एमेट्रोपिक आई इज द आई दैट इज हैविंग अ रिफ्रैक्टिव एरर. एमेट्रोपिक आई इज दैट आई दैट इज हैविंग रिफ्रैक्टिव एरर. सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव एरर? इट इज द फेलियर ऑफ आई टू फोकस लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑन टू द रेटिना टू फॉर्म अ क्लियर इमेज. और क्लियर इमेज कब बनता है? जब रेटिना पे फोकस होती है. तो the refractive error is the failure of eye to focus light from an object onto the retina to form a clear image. So this is refractive error. That can be either myopia, hypermetropia, astigmatism. ये 3 major types हैं refractive error की, myopia, hypermetropia और astigmatism. अगर लाइट रेज जैसे अभी एक्सप्लेन किया रेटिना से आगे फोकस हो रही हैं, दैट इज मायोपिया. पीछे फोकस हो रही हैं, बिहाइंड द रेटिना, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया. और एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे फोकस हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म. तो एस्टिग्मेटिज्म को भी सेपरेट एक्सप्लेन किया है, मायोपिया को भी सेपरेट एक्सप्लेन किया है और हाइपरमेट्रोपिया को भी सेपरेट एक्सप्लेन किया है इन डिफरेंट वीडियोस. दैट कैन बी, मायोपिया कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, और दैट इज़ कॉल्ड हाई मायोपिया.
It can be pathological myopia, physiological myopia. इसी तरह hypermetropia can be mild, moderate and severe. Astigmatism can be regular, it can be irregular, it can be with the rule, against the rule, oblique. So normal eye is emmetropic eye, or eye that is having refractive error is called most common refractive error in children is hyperopia. In teen and adults is myopia. अब हम कॉजेज पे जाते हैं. तो कॉज पे जाने से पहले सबसे पहले हम इसके अपेरेंटली साइज़ को अगर देखें, ये नॉर्मल साइज़ अगर है, तो अगर मैं एक कार्ड रखूं और इसमें हम अप्रिशिएट करना चाहें, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ स्मॉल आई and this is the larger eye. This is the normal eye. Axial length is the distance between the cornea and the retina. Cornea and retina. ठीक है, तो इस आई की एक्सियल लेंथ ज़्यादा है, इसकी छोटी है. तो द नंबर वन थिंग इज योर रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव एरर इज योर एक्सियल लेंथ. दिस इज द एक्सियल लेंथ, दिस इज द एक्सियल लेंथ, द डिस्टेंस. तो इस आई की एक्सियल लेंथ कम है और इसकी ज़्यादा है. तो एक्सियल मायोपिया और एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया. तो हाइपरमेट्रोपिक आइज़ यूजली छोटी आंखें होती हैं और मायोपिक आइज़ बड़ी आंखें होती हैं, याद रखने के लिए. सेकेंड थिंग इज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया. सेकेंड थिंग इज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस. तो कर्वेचर, दिस इज अ कन्वेक्स सरफेस, दिस इज द कन्वेक्स सरफेस. तो होता क्या है, वाई लाइट बेंड? नंबर वन, बिकॉज इट्स द कन्वेक्स सरफेस. तो लाइट बेंड क्यों करती है? वाई? बिकॉज इट इज़ द कन्वेक्स सरफेस. कन्वेक्स सरफेस की एबिलिटी होती है कि लाइट को वो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल. सेकेंड, सो द बेंडिंग एबिलिटी, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टू मीडिया. As per physics law, when light travels from a rarer medium to the denser medium, it bends towards the normal. So this is the normal. Okay. So the second thing, curvature. तीसरे इंडेक्स ऑफ द लेंस. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस की बढ़ जाती है किसी भी वजह से, तो उसमें भी रिफ्रैक्टिव. तो फोर्थ थिंग इज द पोजीशन ऑफ द लेंस. कि लेंस की जो पोजीशन है आगे पीछे हो जाए, तो उससे भी जैसे एक्टोपिया लेंटिस में हो जाता है, तो उसमें भी रिफ्रैक्टिव एरर आ जाता है. पोजीशन के बाद सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द कॉर्निया और द लेंस, और इवन ऑन द रेटिना, लाइक रेटिनल सर्जरी, पीपीवी है, उसके बाद आरडी सर्जरी में आप गैस है या ऑयल डाल रहे हैं, इट ऑल्सो रिजल्ट इन चेंज इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम और रिजल्टिंग इन रिफ्रैक्टिव एरर्स. फिर आगे आपकी मेजर रिफ्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय योर कॉर्निया, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. तो लाइफस्टाइल, योर लाइफस्टाइल, screen time. So everybody is on smartphone. The role of extraocular muscle exercises, your motility exercises. COVID-19 के बाद everybody is on smartphone, mobiles, computers, that are resulting in very high refractive errors. Other factor includes your environmental and hereditary factors. So the causing factor are the axial length, curvature of cornea, index of lens, position of lens, lifestyle, screen time, extraocular muscle eye exercises, any surgical procedure on the cornea, on the lens, on the retina, your environmental hereditary factors. अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे. ट्रीटमेंट पे जाने से पहले हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं. दो किस्म के लेंस हैं, कन्वेक्स और कनकेव. तीसरे सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं. तो जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस इज़ अ पॉजिटिव लेंस, इट इज़ द नेगेटिव लेंस, इट इज़ द डाइवर्जिंग लेंस. ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है. तो आप खुद बताएं कि अगर यहाँ पे इमेज बन रहा था, हम चाहते हैं कि इमेज यहाँ पे बने, तो हमें कौन सा लेंस यूज़ करना है? वी नीड अ डाइवर्जिंग लेंस. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लासेस. Glasses में the lens can be either positive lens or a negative lens or a cylindrical lens. ठीक है, तो जो पॉजिटिव लेंस आप तब यूज़ करेंगे जब आप चाहते हैं ये लाइट रेज पीछे बन रही थी, यू वांट के कन्वर्ज होके यहाँ आगे आ जाएं, तो यू नीड अ कन्वेक्स लेंस. तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस के लिए आप पीछे चाहते हैं, तो मायोपिया की ट्रीटमेंट में यू नीड अ डाइवर्जिंग लेंस. तो मायोपिक लेंसेज आर माइनस
माइनस और हाइपरमेट्रोपिक आर प्लस। तो एस्टिग्मेटिज्म के जो लेंसेज होते हैं दे कैन बी प्लस और माइनस एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, क्योंकि इट्स विद द रूल अगेंस्ट द रूल ऑब्लीक एस्टिग्मेटिज्म, तो इसकी डायनामिक्स डिफरेंट हैं देन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। So the simple thing is glasses. Number 2 is contact lenses. Number 3 is your refractive surgery. ठीक है, refractive surgery, third thing is refractive surgery that can be either performed on cornea or on the lens. So what is refractive surgery? It's a procedure to alter the refractive status of the eye. कि refractive status of eye को आप change कर देते हैं either from cornea, lens या कोई और special, जैसे ICL की बात की है। And the fourth thing is recent advancements. तो recent advancement में जैसे ICL हैं, ICL special lenses, phakic IOLs हैं, implantable columnar lenses, intraocular columnar lenses, तो ये सारे के सारे reason, और coming future में definitely there will be new things I believe. तो आपके लेवल पे, अंडरग्रेजुएट के लेवल पर, the things to keep remember is glasses, contact lens, diffractive and any recent advancement. बाकी रिफ्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना ज़रूरी है कि जैसे बताया एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया जो है, एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया दैट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट फॉर द रिफ्रैक्टिव एरर, दैट कंट्रीब्यूट्स आउट टू 48 to 50 डायोप्टर्स एक्चुअली। तो लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस है दैट कंट्रीब्यूट्स 6 डायोप्टर्स। जब इसमें से निकलता है तो एक्चुअल इज़ 42 to 44 डायोप्टर्स। सो द कॉर्निया कंट्रीब्यूट्स अराउंड 42 to 44 डायोप्टर्स and the total refractive power is around 58 to 60 diopters of the eye. So the total diopteric power of the eyeball is 58 to 60 diopters, and the cornea contributes around 42 to 44 diopters, the rest by the lens. तो और important points जो बताना ज़रूरी हैं, how to do refraction and key points while performing refraction and prescribing refractive card are mentioned in my other videos. इसके अलावा importance of pinhole and IPD, they are also mentioned in my other videos. And the other key points are the history taking in a patient with refraction. इसमें age, profession, उसकी special requirement like driver है, teacher है, student है, fine worker like sonar है, तो उस लिहाज से भी आपको रिफ्रैक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है। पेशेंट इज़ ऑन VDUs, और ARMD के पेशेंट्स में अगर कोई ऐसे टेलीस्कोप्स हैं या लो विजन एड्स हैं, दे हैव अ सेपरेट टॉपिक लाइक पास्ट ऑप्थेल्मिक हिस्ट्री ऑफ ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ट्रामा, पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी के पास्ट में कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ आई ड्रॉप्स, ड्रग्स, एलर्जी, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट and play a very important role in your refraction.